Hello, my dear students. Today I am taking Unit 10, Class 12, Biomolecule. As you know, this is a very simple and interesting chapter. It is related with our body because it is the molecules which are related with animals or plants. These are called as the biomolecules. And the biomolecules, in biomolecule particularly we studied about the carbohydrate, proteins, nucleic acid and vitamins, and in a small amount of the hormones are also be studied in the biomolecules. So biomolecules are those molecules which are related with plants and animals. These are called as the biomolecules. Their molecular mass is very high. These are nitrogenous compounds. Sometimes these are nitrogenous compound in case of the protein. In the first biomolecule is the carbohydrate. So first of all, what are the carbohydrate and what are the carbohydrate? According to the old definition, carbohydrates are a general formula CX and H2O का whole Y. These are the hydrated molecule of the carbon. These are called as the carbohydrate, or those which are made up of carbon, hydrogen and oxygen are called as the carbohydrate. But according to the modern definition, carbohydrates are the polyhydric aldehyde and polyhydric alcohol. For example, glucose. Glucose is the example of the carbohydrate. Carbohydrate. This is the polyhydric. Poly means बहुत सारे, many. Hydric means OH group. Polyhydric aldehyde 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है, इट्स जनरल फार्मूला इज C6H12O6. काउंटिंग कर लीजिए. नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and there are 6. 1, 2, 3, 4, 5. These are 5 OH group. Alcoholic group कितने लगे हैं? 5. And this is the aldehyde group. So this is called also be called as a एल्डोज शुगर. ये हमारे पास क्या बन रही है? एल्डोज शुगर भी हम इसके नाम से जानते हैं. एंड द अनदर दिस इज कॉल्ड एज द कीटोज एंड दिस इज द पॉलीहाइड्रिक कीटोन. पॉलीहाइड्रिक कीटोन, पॉलीहाइड्रिक aldehydes are the carbohydrate and polyhydric ketones are also the carbohydrate. ये भी carbohydrate होते हैं. This is the formula of the fructose. You know the fructose is the sweetest sugar. फ्रक्टोज जो होती है वो स्वीटेस्ट शुगर है. फॉर्मूला चेक कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज द CH2OH. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हियर द OH ग्रुप इज टोटली वही आ रहा है 1, 2, 3, 4 and 5 and this is the ketonic group and this is polyhydric aldehyde and this is polyhydric ketone. Both of them they have the same formula but it is a glucose and it is a fructose. ये क्या है? fructose है. fructose is a ketone and glucose is a aldehyde. So glucose generally give the reaction of the aldehyde and ketone give the fructose give the reactions of the ketone. Now this is the definition of the carbohydrate. अगर एग्जामिनेशन में आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं तो आप जनरल डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल करके आप उसको शो करते हैं. देन आफ्टर क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है. व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट को कई तरीके से क्लासीफाई किया है. फर्स्ट वन are classified on the basis of their hydrolysis. On the basis of the hydrolysis, carbohydrates are classified into the 3 types. The first type is called as a monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. कार्बोहाइड्रेट को on the basis of hydrolysis 3 type में हम लोग डिवाइड करते हैं. Carbohydrates classify into 3 types. First one are called as a monosaccharide. मोनोसेकेराइड इसकी लोएस्ट यूनिट स्टार्ट होती है 6 नंबर के कार्बन से. एग्जाम्पल ग्लूकोज. ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड. ग्लूकोज, फ्रक्टोज दीज आर द मोनोसेकेराइड. एंड सेकेंड वन आर कॉल्ड एज अ ओलिगोसेकेराइड. आप लोग के CBSE के पेपर में अलग से डेफिनेशन भी आ जाती है. व्हाट आर ओलिगोसेकेराइड्स? तो ओलिगोसेकेराइड्स इन विच द मोनोसेकेराइड यूनिट इज 2 to 10. इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट 2 से 10 के बीच में मोनोसेक्राइड यूनिट होती है. इन केस आप लोग के इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है. दीज आर डाइसेक्राइड. इफ
ऑन हाइड्रोलिसिस, इनकी तो हाइड्रोलिसिस होती नहीं है क्योंकि इसमें इससे छोटा कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी क्योंकि ये लोएस्ट मॉलिक्यूल है, ये स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट है इसकी। ओलिगोसेक्राइड में फर्स्ट डिवाइड होता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड्स आर those in which these on hydrolysis, for example in case of C12H22O11, on hydrolysis it is break into C6H12O6 plus C6H12O6, that means it is break into टू पार्ट। ये दो मोनोसेक्राइड यूनिट में ब्रेक हो रही है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सुक्रोज, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। एंड सुक्रोज इज ब्रेक इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये ब्रेक किस में हो जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन ओलिगोसेक्राइड को क्लासिफाई करो, तो आप ओलिगोसेक्राइड की डेफिनेशन देते हैं। तो ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव द 2 to 10 monosaccharide units, and these are classified into two types, disaccharide and trisaccharide. Disaccharide means those which on hydrolysis to give 2 monosaccharide unit, and trisaccharides are those which on hydrolysis to give 3 monosaccharide units. In disaccharide the example is the sucrose, and in trisaccharide the example is the raffinose. Raffinose serpentina, ये आपका सर्पगंधा को कहते हैं, जो कि जो स्नेक्स के लिए एक मेडिसिन होती है। एक स्नेक्स बाइट अगर करते हैं तो उसमें एंटीडोट की तरह वर्किंग करती है, एक मेडिसिन होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ रेफिनोज सर्पेंटाइना। आप देखिए, आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है। जैसे मान लीजिए CH और O तीनों लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे हमें 2H2O यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ 1 मॉलिक्यूल वाटर का यूज़ किया। अब चूंकि जब ये ब्रेक होगा तो ये 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। दिस इज द ग्लूकोज, दिस इज द फ्रक्टोज एंड दिस इज कॉल्ड एज द गैलेक्टोज। हम इनको आपको फिर से बोलते जा रहे हैं। दिस इज द ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड दिस इज कॉल्ड एज द गैलेक्टोज। 3 मॉलिक्यूल में ब्रेकअप हुआ। अब देखिए कार्बन कितना हो गया? 6 12 एंड 18। हाइड्रोजन चेक कीजिए, 12 24 36 में आपने 4 को माइनस कर दिया, कितना हो गया? 32। ये 6 12 18 में 2 को माइनस किया, कितना आ गया अपने पास? 16। तो फॉर्मूला ऑफ द रैफिनोज, दिस इज रैफिनोज इज अ ट्राइसेकेराइड। ये क्या होता है आपका? ट्राइसेकेराइड। एंड ट्राइसेकेराइड्स आर दोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव 3 मोनोसेकेराइड्स यूनिट। सो oligosaccharides are classified into the 2 type. Now the last one, this is called the polysaccharide. अभी आप लोग के एग्जामिनेशन के, आप अगर लास्ट ईयर के पेपर्स उठाएंगे तो ओलिगोसेक्राइड भी उन्होंने अलग से पूछा है, पॉलीसेक्राइड भी उन्होंने अलग से क्वेश्चंस पूछे हैं, और टोटल भी पूछा है कि हाइड्रोलिसिस के बेस पर कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। Polysaccharide means which on hydrolysis to give a large number of monosaccharide unit. Large number of monosaccharide like that of a starch, C6H10O5 plus n number of H2O, then it gives C6H12O6, n number के फॉर्म हो जाएंगे। This is the formula. The examples are the starch and cellulose. तो starch and cellulose are the examples of the polysaccharide. अभी आप लोग से एग्जामिनेशन में जैसा पूछा जाए आपको उतना ही पार्ट लिखना है, टोटल नहीं लिखना। डिपेंड करता है, मोनोसेक्राइड अगर पूछ रहे हैं तो आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द एग्जांपल ऑफ द मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड का पूछा जाए तो सुक्रोज है, माल्टोज है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डाइसेक्राइड। एंड ट्राइसेक्राइड में आपका पर्टिकुलर एग्जांपल आता है रेफिनोज, एंड पॉलीसेक्राइड के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं स्टार्च एंड सेलुलोज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पॉलीसेक्राइड। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस। नाउ द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट दीज आर ऑफ 2 टाइप, शुगर एंड नॉन शुगर। अभी फिर से डिवाइड किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। दीज आर ऑफ 2 टाइप, शुगर जो मीठे होते हैं एंड नॉन शुगर दो विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, जिनका टेस्ट मीठा नहीं होगा। दीज आर हाइड्रोलाइज
व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, बट दीज आर नॉट हाइड्रोलाइज और दीज आर नॉट डिजॉल्व इन द वाटर। ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, डिजॉल्व होते। एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्लूकोज को वाटर में अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, तो इट इज़ अ शुगर। ये शुगर कार्बोहाइड्रेट है। एंड नॉन शुगर आप स्टार्च देखिए, अभी आज के समय में पोटैटो चल रहा, आलू, आलू के अंदर मेनली आपको मालूम स्टार्च है, आलू अरबी इन सब के अंदर स्टार्च है। आलू को चिप्स बनाते हैं तो आप देखिए नीचे वाइट कलर का सब्सटेंस बैठ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टार्च। स्टार्च डिजॉल्व नहीं होता, सेटल डाउन हो जाएगा वाटर में लोअर बेस पे। तो स्टार्च एंड सेलुलोज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन शुगर्स। नाउ carbohydrates are further classified on the basis of their testing. On the basis of their testing, these are of two type। फिर से इनको टेस्टिंग के बेस पे दो टाइप में डिवाइड किया, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, आपके एग्जामिनेशन में छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, आपको ध्यान रखना है जितना पूछा जाए आपको एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए आप एग्जाम्पल लिखिए, अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। रिएक्शन लिखते समय काटना पीटना नहीं। अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कट रही है, पूरी क्वेश्चन कट करके आराम से नीचे लिखिए, क्योंकि आप कट पीट के उसको बार बार लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। अब पॉइंट आता है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में चूँकि आपने इसके पहले आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ये मालूम है कि एल्डिहाइड रिएक्ट विद शिफ्ट रिएजेंट, देन इट गिव्स पिंक कलर। सेम जो आपने एल्डिहाइड में पढ़ा है वही हम टेस्टिंग कर सकते हैं, चूँकि टेस्टिंग के बेस पर है। विद टॉलेंस रिएजेंट, अगर हमने टॉलेंस रिएजेंट डाला तो देखिए आपको एल्डिहाइड के 3 टेस्ट आपने पढ़े थे एल्डिहाइड के चैप्टर में। टॉलेंस रिएजेंट का फेहलिंग सोल्यूशन एंड एक्चुअल में आपको यहाँ 2 ही टेस्ट देना है, और थर्ड अगर आप चाहते थे तो आप शिफ्ट रिएजेंट का टेस्ट भी आपका, चूँकि जो आपके एल्डिहाइड वाले चैप्टर में दिया है उसके बेस पर आप दे सकते हैं। दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। इफ सिल्वर मिरर कम्स आउट, अगर सिल्वर मिरर आ जाता है दैट मीन्स इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। इफ रेड प्रेसिपिटेट कम्स आउट, रेड पीपीटी आ जाता है, दिस इज द प्रेसिपिटेट ऑफ द कॉपर का रेड पीपीटी आता है, देन इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। सिल्वर मिरर कम्स आउट, चूँकि एल्डिहाइड के टेस्ट है, एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है सिल्वर मिरर का, एंड शिफ्ट रिएजेंट गिव द पिंक कलर ऑब्टेन हो जाता है, दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर। एंड इफ these reagents do not give any test, यानी नॉन रिड्यूसिंग अगर होगा तो विद टॉलेंस रिएजेंट देयर इज नो टेस्ट, विद फेलिंग सोल्यूशन देयर इज नो टेस्ट और नो कलर, नो प्रेसिपिटेट, एंड शिफ्ट रिएजेंट देयर इज नो टेस्ट और एनी कलर। सो दीज आर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल भी देखने हैं। सिंपल, स्टार्च सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एक एग्जाम्पल और बढ़ा दीजिएगा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज, दिस इज द एग्जाम्पल, ग्लूकोज। लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर। छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लोग को 1 मार्क्स में याद रखने हैं। मिल्क शुगर इज कॉल्ड एज द लैक्टोज। तो दिस इज द कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग। तो अब आपके पूरे क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपका हाइड्रोलिसिस वाला क्लासिफिकेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद आप लोग के एग्जामिनेशन में कुछ केवल ये आपको कार्बोहाइड्रेट में रिएक्शन केवल कुछ 6 रिएक्शंस मिलते हैं, बाकी बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में आपको कहीं भी कोई रिएक्शंस नहीं मिलेंगे। तो इसमें रिएक्शन में हमारे सबसे पहले दिया है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अभी एग्जामिनेशन में ये भी कह सकता है, देखिए हमने ग्लूकोज को कुछ ऐसा लिखा, आपने देखो उसको शॉर्ट कर दिया, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। ग्लूकोज में देखिए आपके पास दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज द एल्डिहाइड, तीनों ही लगे हुए। अब एल्डिहाइड और अल्कोहल में एक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड कंटेन डबल बॉन्ड भी होता है और सिंगल बॉन्ड भी होता है, तो रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्ड पे होते हैं, यानी पर्टिकुलर एडिशन रिएक्शंस होते हैं। और जब आपने अल्कोहल एल्डिहाइड पढ़ा तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड।
HI हाइड्रोआयोडिक एसिड इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये नेसेंट हाइड्रोजन देती है, एक्चुअल में HI रिएक्शन नहीं करता है, यहाँ पे रिएक्शन कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। एंड ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हो सकता है आप लोग से एग्जामिनेशन में HI वर्ड ना दिया जाए, हो सकता है वो दे दे कि ग्लूकोज रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो भी आपको यही लिखना है। नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू द एन हेक्सेन, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एन हेक्सेन में। एन मतलब नॉर्मल, एन हेक्सेन, सो फॉर्मेशन ऑफ द एन हेक्सेन। अब एन हेक्सेन का मतलब है टोटल 14 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई, और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर, ये वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाता है एंड ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू द। नाउ रिएक्शन विद ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद डिफरेंट टाइप ऑफ द एजेंट like that of a oxidizing agent, reducing agent, PCl5 and reaction with HCl। आपको कुछ एग्जामिनेशन में रिएजेंट्स भी दिए जाएंगे और आपको उनके रिएक्शन लिखने होंगे। केवल और केवल बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट के ही रिएक्शन है, इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है, बाकी पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। अब देखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। एक ग्लूकोज को हमने शॉर्टकट में लिखा है। Glucose contain aldehyde group, it is containing the secondary alcohol, it containing the primary alcohol। So first of all, अगर alcohol भी है और aldehyde भी है, alcohol में single bond लगा है और aldehyde के अंदर double bond है। double bond मतलब हो गया it show the addition reaction। ये कौन सा reaction दे रहा है, addition। addition reaction पहले होता है क्योंकि double bond वो saturated होना चाहेगा, unsaturated convert into the saturated hydrocarbon। तो फर्स्ट रिएक्शन आती है आपकी रिएक्शन विद HI। नाउ देखिए, मैंने यहाँ सारे इसलिए आपको लर्न करने के लिए एक सिंपल ट्रैक दे दिया कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद, जैसे ग्लूकोज रिएक्शन करता है किससे, HI से। HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच गिव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, जो एक्सेस में हाइड्रोजन देंगे। हाइड्रोजन जैसे ही ऑक्सीजन को मिलेगी, ध्यान रखना कभी भी ऑक्सीजन लिखा है तो नेचुरल है, वाटर मॉलिक्यूल तो लिबरेट होगा ही होगा, ये सारे ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड दिस इज कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हियर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, क्योंकि कार्बन एटम 6 है, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्ट इनटू एन हेक्सेन। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एन हेक्सेन में चेंज हो जाता है। ठीक, सेकेंड था रिएक्शन विद LiAlH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दिस इज अ, ये लिखा हुआ है mild reducing agent, and mild reducing agents are those agents which give a small amount of hydrogen or nascent hydrogen, जो कम क्वांटिटी में हाइड्रोजन देंगे। अभी तो देखिए उनको एक्सेस में मिल गया तो ऑल द ऑक्सीजन आर रिमूव। अब क्या होगा, स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है, केवल एक पार्ट पर रिएक्शन कर रहा है। एल्डिहाइड का CHO का मतलब हो गया हमारा, लिखने से कुछ तरीके से हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। अब इसने एक H इसने ले लिया, एक H इसने ले लिया। एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल, ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल बन गया। एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सॉर्बिटॉल। आप लोग के एग्जामिनेशन में हो सकता है ऐसे भी पूछ लें, हाउ टू ऑब्टेन सॉर्बिटॉल फ्रॉम ग्लूकोज, सॉर्बिटॉल को ग्लूकोज से कैसे बनाओगे, या व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज रिड्यूस, क्या होगा कि अगर ग्लूकोज का रिडक्शन कर देंगे विद LiAlH4। आप रिएक्शन को लिख के याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। देन इफ ग्लूकोज रिएक्ट विद माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू द सॉर्बिटॉल, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, सॉर्बिटॉल में चेंज हो जाता है। एंड इफ ग्लूकोज इज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, कम दे रहा होगा, स्ट्रॉन्ग है एक्सेस में दे रहा होगा। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द ब्रोमीन वाटर। अभी जैसे आपने देखा, हमने रिडक्शन किया और आपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर हम एल्डिहाइड को, अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, RCH2OH लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, देन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, वाटर रिमूव होता है। सेम रिएक्शन आपने जो पढ़े हुए हैं एल्डिहाइड में वही अभी भी है। तो ये देखिए, ये दोनों H और ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको हो सकता है ये A B C में भी पेपर में दे देते हैं बोर्ड में। तो अल्कोहल
on oxidation to give aldehyde and aldehyde on oxidation to give carboxylic acid. Similarly back करेंगे, अगर हम reduction करेंगे H देंगे, now carboxylic acid convert into the aldehyde. देखिए कैसे, यहाँ से bond break होगा, ये H ले लेगा, now it is convert into aldehyde. एल्डिहाइड को फिर से हम रिडक्शन दे देंगे, फिर हाइड्रोजन अगर ऐड कर दें, ना इट इज कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल. तो आपको जो ये रिएक्शन दिख रहे हैं ना, वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर बनाए हैं कि हमने अगर इसका रिडक्शन किया तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया. रिडक्शन करने पे एल्डिहाइड रिडक्शन में करने में क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा. ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोनिक एसिड. क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड. सिंगल स्टेप, ऊपर केवल जो एल्डिहाइड है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में. नाउ इट इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. अब रिएक्शन किससे करेगा, नाइट्रिक एसिड. जो आप लोग के कोर्स में वो मैंने आपके इसलिए ऊपर नोट कर दिए थे. नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो पूरे स्टेप पर रिएक्शन करें. पूरे स्टेप में भी सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं करा तो आपका एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन. एल्डिहाइड आपने देखा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो भी कार्बोक्सिलिक बन गया, और अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन होगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कन्वर्ट कराएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में. एंड दोनों तरफ अगर COOH लिखे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ सैक्रिक एसिड. सो अब आपको ये क्लियर हो गया, अगर माइल्ड रिड्यूसिंग है तो सॉर्बिटॉल, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है एन-हेक्सेन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है ग्लूकोनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है सैक्रिक एसिड. और फिर आपके इसमें एक और पॉइंट दिया है, रिएक्शन विद PCl5. PCl5 हैलाइड का प्रोडक्ट बनता है. आपने जब हेलो एल्केन मैंने आपको पढ़ाया तो आपने देखा था, अल्कोहल से हम 5 टाइप से हैलाइड बना सकते हैं. रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद SOCl2. ये हमारे पास एजेंट्स होते हैं जिनसे हम हैलाइड बना सकते हैं. तो PCl5 इज द हैलोजन कैरियर, ये हैलोजन के प्रोडक्ट देगा. अब एल्डिहाइड तो रिएक्शन करेगा ही नहीं क्योंकि एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा. कौन करेगा, अल्कोहल. तो इट इज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड. 4 ये हो गए और 1 ये. नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, क्योंकि एल्डिहाइड आपके PCl5 से रिएक्शन नहीं देता. नाउ लास्ट रिएक्शन बच्चा हमारे पास HCl. ये भी आपने एल्डिहाइड में पढ़ा था. इस इज एडिशन रिएक्शन एंड ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN, then it gives ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन. साइनो मतलब CN डबल बॉन्ड पे देखिए, क्योंकि ये हमारे पास, मैं आपको इस तरीके शो कर रही हूँ, ये एल्डिहाइड है. जैसे ये HCN से रिएक्शन करेगा, HCN से रिएक्शन करने के बाद ये OH को लेके, ये तो H लगा ही हुआ, OH को लेके ऊपर पहुँचेगा और CN ये रह जाएगा, और ये ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट है. OH भी लगा होता है और CN भी लगा होता है, तो उसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन. सो इट इज़ कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन. तो आपका जो केमिस्ट्री वाला जो मेन पोर्शन है उसमें आपके ये टोटल रिएक्शंस दिए हैं जो आपको एग्जामिनेशन में व्हाट हैपेंड व्हेन, हाउ विल यू ऑब्टेन, ये इस तरीके से आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. ना इसके बाद कार्बोहाइड्रेट में अब हमारा छोटा सा पार्ट बचा. व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या यूजेस होते हैं. एज यू ऑलरेडी नो, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ बायोफ्यूल्स बिकॉज दे गिव एनर्जी फॉर आवर बॉडी. हम लोग रेगुलर वे में ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, रोटी दाल रोटी यूज़ करते हैं, राइस यूज़ कर रहे हैं, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है. तो दीज आर द बायोफ्यूल्स. ये क्या है, बायोफ्यूल्स है. सेलुलोज, एनिमल्स के लिए सेलुलोज, एनिमल्स क्या खाते हैं, चारा खाते हैं. हरी पत्तियों में क्या होता है, सेलुलोज होता है. तो सेलुलोज जो है वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, वो भी फूड की तरह एनिमल्स यूज़ करते हैं. पहले समय में हम लोग भी यूज़ करते थे सेलुलोज, लेकिन हमारी बॉडी में सेलुलोज के डाइजेशन के लिए आप हार्मोन्स एंजाइम्स नहीं बन पाते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन था जिसका नाम था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. अपेंडिक्स का वर्किंग धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि हम लोगों ने सेलुलोज को लेना बंद कर दिया. अभी हम लोग कच्ची चीज़ें नहीं खाते हैं, हर चीज़ जो होती है वो पका के खाते हैं, इसलिए सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता. लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स वगैरह लेते हैं जिनके अंदर मेनली सेलुलोज होता है.
सेलुलोज का यूज़ भी बहुत जगह किया जाता है। सेलुलोज एसीटेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सेलुलोज का सिल्क बनाने में भी, रेयॉन वगैरह सिल्क बनाने में भी यूज़ किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के तो काफ़ी सारे यूजेज हैं। सिल्क बनाने में यूज़ कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट आपका फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, बायोफ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोटीन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स कितने तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ प्रोटीन्स, यूजेस ऑफ प्रोटीन्स एंड अच्छा एक छोटा सा टॉपिक अभी इसका बच गया, दिस इज द व्हाट आर द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक्चुअल में आप लोग के एग्जामिनेशन में छोटा सा क्वेश्चन आते हैं छोटे, व्हाट आर द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, व्हाट आर द पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आता है। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट मोनोसेक्राइड यूनिट होती है, दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज का सिंबल जी और ग्लाइकोसिडिक का सिंबल भी जी। तो ग्लूकोज के अंदर यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो लिंकेज होता है, यानी द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होते हैं, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन द टू मोनोसेक्राइड और लिंकेज विच बॉन्ड अप द टू मोनोसेक्राइड यूनिट। जो मोनोसेक्राइड यूनिट को जोड़ते हैं दे आर कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही कहलाता है हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, इसको हम लोग डैश ओ डैश, या कई सारी बुक्स में उन्होंने इस तरीके से भी शो किया है। एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट, दो मोनोसेक्राइड यूनिट के बीच में प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोटीन। अब अपना ये फिनिश हो गया। कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास इतने क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको करना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है व्हाट आर द प्रोटीन। प्रोटीन का अभी आपको बता दें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लोबुलर डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, जो हमारे बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन किस जगह ऑब्टेन होता है, ये भी आप लोग से पूछा गया है, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह। Proteins are the nitrogenous, these are the nitrogenous organic और complex compounds। nitrogenous organic compounds है। इसकी जो smallest unit है, एक्चुअल में these are the polymer, ये polymer है। smallest unit होती है इनकी amino acids। amino acids combine together। अब amino acid का मतलब हो गया amino, CH2NH2 CH2 COOH, these are the base and this is the acid, amino acid, alpha amino acid या amino acid। amino acids combine together, amino acid combine होते हैं, क्या बनाते हैं, दिस दे फॉर्म द पेप्टाइड। ये बनेगा कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से लिंकेज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोटीन। Glycosidic linkage, it combine the two monosaccharide unit, and peptide bonds they linkage the two amino acids, ये दो amino acids को bond करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड को हम CONH से रिप्रेजेंट करते हैं, CONH। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो एमिनो एसिड्स कंबाइन होती हैं, कंबाइन किनके थ्रू होती है, पेप्टाइड बॉन्ड से। दे फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड, दे फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या बनाया इन्होंने, पॉलीपेप्टाइड now convert into peptone, प्रोटियोज, पहले प्रोटियोज में चेंज होता है, देन पेप्टोन एंड देन नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू प्रोटीन। तब ये कन्वर्ट होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल है जिसकी सबसे छोटी यूनिट होती है एमिनो एसिड्स। अब देखिए अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं। ये आपका एक एमिनो एसिड है, ये हमारा दूसरा एमिनो एसिड लिया हमने और इन दोनों का लिंकेज किया। जैसा हमेशा ही कहते हैं इसका H और इसका OH लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद नाउ इट इज़ कन्वर्ट इनटू NH, ये लिंकेज है आपका। देन CH2CONH, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। यही बन रहा है आपका पेप्टाइड बॉन्ड,
CONH, then CH2, then C double bond O. दिस इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड. ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड. तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप पूरा रिएक्शन दे सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड्स are the form between the two amino acid or they combine the two amino acid. These are represented by CONH. इनको CONH से represent करते हैं. These are present in the proteins. ये proteins के अंदर present रहते हैं. Now प्रोटीन के ऊपर अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन्स को किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं. अच्छा, प्रोटीन के कुछ एग्जांपल, जैसे आपने देखा कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एक्चुअल जैसे आपने देखा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, बायोफ्यूल है. ऐसी प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी को ग्रोथ देते हैं, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. छोटे बच्चों में जैसे आप देखते हो कि जनरली क्या कहा जाता है, इनको मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे मिल्क तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिल्क इज़ ए कंप्लीट सप्लीमेंट. मिल्क के अंदर सब कुछ है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मिल्क के अंदर प्रोटीन भी है. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज शुगर है, शुगर के बेस पे कार्बोहाइड्रेट हो गए, लेकिन प्रोटीन के बेस पे मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है. कौन सा प्रोटीन होता है? मिल्क प्रोटीन, केसीन कहलाती है. मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है दिस इज कॉल्ड एज अ केसीन. तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि मिल्क के अंदर प्रोटीन कौन सा है और कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आपको दोनों नोट करके नोट देने पड़ते हैं, उसमें लिखना पड़ता है. ठीक है. अब प्रोटीन को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ ग्लोबुलर प्रोटीन. प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया. दिस इज कॉल्ड एज अ फाइब्रस प्रोटीन. सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन. फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस जैसे कि आपको नेम से पता लग रहा है कि these are present in the form of a fiber, thread like structure. इनमें थ्रेड जैसा बनेगा, लेयर जैसे, like that. In case of the hair, hairs is an example of the fibrous. hairs देखिए आप, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं. फाइब्रस में कई बार आप लोग कहते हैं ना हमारे बाल दुमुहे हो रहे हैं. दुहे मतलब है बाइफरकेटेड होते हैं. इसीलिए जब बाइफरकेटेड होने लगते हैं तो हम लोग ट्रिम कर देते हैं बालों को, क्योंकि उसकी ग्रोथ रुकने लगती है. फिर जब ट्रिमिंग कर देते हैं फिर से ग्रोथ होने लगती है. लड़के लोग भी जब बड़े हो जाते हैं बाल तो अपनी कटिंग करा लेते हैं. ऐसे गर्ल्स भी अगर अपने टाइम टू टाइम ट्रिम कराते रहते हैं तो ग्रोथ और अच्छी होती है. तो फाइब्रस प्रोटीन के हमारे पास एग्जांपल जैसे हेयर्स, दी हॉर्न्स, एनिमल्स में हॉर्न है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन. नेल्स, आवर नेल्स आर ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन. एंड ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब है, आप इसके कई सारे पॉइंट तो अपने आप ही दे सकते हैं. फाइब्रस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ फाइबर एंड दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोबुलर और क्वाइल्ड. ये ग्लोबुलर गोल होंगे, स्फेरिकल होंगे, ऐसे लिख सकते हैं. फाइब्रस प्रोटीन्स दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. आप हेयर्स को पानी में डाल के देखिए, सालों साल रखे रहेंगे, डिजोल्व नहीं होंगे. दे आर नॉट डिजोल्व इन द वाटर, बट ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर डिजोल्व इन वाटर. लाइक दैट. एग्जाम्पल से समझते हैं. हीमोग्लोबिन इज द एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन. हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन से ग्लोब को जोड़ लो. हीमोग्लोबिन 2 बूंद ब्लड की पानी में डाल देना, पूरा पानी लाल हो जाएगा. इसके मतलब दिस टाइप ऑफ द प्रोटीन इज सॉल्युबल इन द वाटर. ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है. फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, आपने इनके एग्जाम्पल्स भी दे देने, तो आपको जो है वो डिफरेंस क्वेश्चन में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं. नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. ये भी आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. डीनेचुरेशन, डी वर्ड हमारी केमिस्ट्री में बहुत बार यूज किया. डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर. Dehydrogenation, removal of hydrogen. Dehydrohallucination, removal of HCl. Denaturation, nature से different. अगर nature से different हो रहा हो, this is called as a denaturation. Denaturation of protein पे अगर क्वेश्चन आ गया, what is the denaturation of protein? CBSE में लेकिन थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देते हैं कि एग, जैसे एग में है, अभी वो गाना सुना ना, क्या होगा, मुर्गी क्या होगा, अंडे का क्या होगा, है ना, तो फ्राई होगा कि वो क्या होगा, है ना. जब वो तवे पे डालते हैं हम अंडे को तो क्या होता है, अंडा तो कैसा होता है, लिक्विड की स्टेज में होता है, लेकिन जब गर्म तवे पे डाला जाता है तो आमलेट बन जाता है. इसके मतलब इट इज़ कन्वर्ट इनटू सॉलिड. तो डेफिनेशन कैसे देंगे, व्हाट इज द डीनेचुरेशन. तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब व्हेन
the protein is affected by temperature or treated by temperature, by acid, by base, by pH or by ultraviolet rays, then their nature become changes. नेचर बिकम चेंज मतलब उसके नेचर में चेंज आने लगेगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ भी में भी चेंजेस आ सकते हैं, लाइक दैट। अब अपने घर के एग्जांपल लेते हैं। मिल्क इज अ प्रोटीन, मिल्क में केसीन प्रोटीन होता है, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, इट इज़ एसिड। जब हम दूध में हल्का गुनगुना करके डाल देंगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। अब फटे हुए दूध को हम कैसे भी नहीं सिल सकते, क्योंकि उसके प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया। लिक्विड, अब आप देखिएगा जो पनीर होगा ना, वो ऊपर आ जाएगा, कोगुलेट होके ऊपर आ जाता है, और जो लिक्विड होता है वो अलग हो जाता है। दिस इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और देखिए एग ले लीजिए, एग आपको मालूम है अंदर लिक्विड होता है, गर्म पानी में डाल दीजिए, बॉयल कर दीजिए, अंडा बॉयल हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये हो गया आपके हीटिंग इफेक्ट। पहला वाला एग्जाम्पल जो हमने मिल्क का दिया वो एसिड इफेक्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि जिसमें प्रोटीन का जो नेचर होता है वो अपने आप में चेंज हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है घर में दूध आया और टाइम नहीं रहा या याद नहीं रहा और हम दूध नहीं गर्म कर पाए गर्मियों में, अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट होता है और मिल्क हमारा रखे रखे कोगुलेट हो जाता है, फट जाता है और उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके आते हैं, हमारे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगर पेपर में आता है तो आप सारे फैक्टर्स लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा और आप एग्जाम्पल कम से कम 1 और 2 एग्जाम्पल्स जरूर डाल के आए कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात, हमें एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, हमें रीज़न भी बताना है ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअल में प्रोटीन के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। बेसिकली जो चेंज होता है वो ये होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमेशा सीक्वेंस बनते हैं, अमीनो एसिड के सीक्वेंस बनेंगे। सीक्वेंस जैसा कि अभी हमने बताया, पहले अमीनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड के तो प्रोटोपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, देन प्रोटियोज बनेगा, देन पेप्टोन्स बनेंगे, देन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है आगे पीछे हो गया, ये आपका पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड के बाद पेप्टोन्स, देन प्रोटियोज एंड फाइनली इट इज कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन। तो ये दिस इज द सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस में ये आपस में कन्वर्ट होके चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमेशा सीक्वेंस बनता है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये आपस में कंबाइन होने लगते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आती है कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, हेलिक्स या हेलिकल मतलब होता है ऐसे कुंडली जैसी, है ना, बना रहा है, या बीटा प्लेटेड है, बीटा प्लेटेड है। तो 2 पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, हेलिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, हेलिकल स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड। टर्शरी में क्या करता है, ये क्वाइल कर लेता है और क्वाइल करने के बाद, क्वाइलिंग करने के बाद भी 2 पॉसिबिलिटी होती है कि ये फाइब्रस में क्वाइलिंग में आ रहा है या फिर ये ग्लोब्यूलर करके ये शॉर्टकट हो रहा है, मतलब अपने आप को कॉम्पैक्ट कर रहा है। अब ये प्रोटीन के 3 स्ट्रक्चर है। जैसे हमने इसमें एसिड, बेस, हीट, अल्ट्रावायलेट कुछ भी चेंज किया, तो सेकेंडरी और टर्शरी में तो कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन जो प्राइमरी होता है वो उसका चेंज हो जाता है। और जब सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है और उसी के कारण होती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आपको एग्जामिनेशन में रीज़न भी लिख के आना पड़ता है कि क्या रीज़न हुआ। प्राइमरी अनचेंज होता है और सेकेंडरी और टर्शरी चेंज हो जाता है, क्योंकि जो क्वाइल्ड है वो अनक्वाइल्ड होगा, अनफोल्ड हो जाएगा, और अनफोल्ड हो जाएगा यानी सेकेंडरी और टर्शरी अनफोल्ड हो जाता है, लेकिन प्राइमरी सीक्वेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में आपको रीज़न भी लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन का इतना पार्ट पूछा जाता है। अब प्रोटीन में कई बार वो आपसे पूछ लेंगे, जैसे एग के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपने लिखा एल्ब्यूमिन है, फिश में प्रोटालिन है, व्हीट में ग्लूटीन है ना, मिल्क में केसीन है। तो ये एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
जो आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, जो हमारे डिटेल नोट्स वगैरह जो हैं उनके अंदर दिए हुए हैं, और जो मैंने डिटेल वीडियो दिए हैं उनके अंदर भी आपको मिलेंगे। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोमॉलिक्यूल के अंदर विटामिन्स। विटामिन्स देखिए, आप बायोमॉलिक्यूल में जनरली हम लोग ये सारी चीज़ें फूड के फॉर्म में ले रहे हैं, हमारी बॉडी में बन नहीं रहे हैं, बल्कि हम किसी भी तरीके से इनको खाने में ले रहे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, रेगुलर हम इंडियंस हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं। रोटी मतलब है कि हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, दालें खा रहे हैं मतलब हम प्रोटीन ले रहे हैं अपनी बॉडी के लिए। लेकिन इनके अलावा भी हमारी बॉडी को और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और उनके लिए हम लोग पर्टिकुलर यूज़ करते हैं विटामिन्स। क्या यूज़ करते हैं? विटामिन्स। तो विटामिन्स को वाइटामिन्स है ना, विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द वाटर सॉल्युबल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। हाँ जी, अभी बाद में डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, एक पार्ट छूट गया, हमारे बच्चों ने याद करा दिया, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का भी एक क्वेश्चन और बचा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, जिसके हमारे पास एग्जाम डिफरेंस क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सिंपल सा पार्ट है। एसेंशियल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी बट दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को नीडेड है, हम चाहते हैं, ये हमारी बॉडी को ज़रूरत है इनकी, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर बनते नहीं है। दे आर कॉल्ड एज द एसेंशियल प्रोटीन, लाइक दैट ऑफ ल्यूसिन, ल्यूसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द essential protein. And non-essential proteins are those proteins which are not required in our body but they are synthesized in our body. देखो भगवान ने कैसी चीज़ बनाई, जिसकी ज़रूरत है वो है नहीं, और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो बॉडी के अंदर है। आउट ऑफ 2011 तो हमारे पास नॉन एसेंशियल ही है, 20 में 11 तो नॉन एसेंशियल, जिनकी बॉडी को ज़रूरत है नहीं लेकिन फिर भी वो बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है। और जिनकी बॉडी को ज़रूरत है, जहाँ चने है वहाँ दांत नहीं है, जहाँ दांत है वहाँ चने नहीं है, वही वाली बात हो गई ना। जिसको ज़रूरत है वो मिल नहीं रही है, और ज़रूरत नहीं है वो चीज़ खूब मिल रही है ना। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के प्रोटीन हो जाते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल आर नीडेड फॉर आवर बॉडी एंड नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, एंड नॉन एसेंशियल आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर बॉडी and they are synthesized in our body. They are called as the non-essential. Alanine example, आपको कुछ examples भी इसमें एक दो examples आप note करें। Alanine is an example of the essential protein, and for non-essential protein, glutamine is an example of the non-essential protein. Now, अब तो हम लोग next start कर देते। This is the vitamins. Vitamins are another biomolecules. These are required for our body in a small amount. These are also not synthesized in our body. ये भी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं करते, बट स्मॉल अमाउंट में डी रह लेता है, बाकी के बॉडी के अंदर रुकते भी नहीं। ये भी हम लोग वेजिटेबल्स से लेते हैं, अपने फूड प्रोडक्ट्स से लेते हैं। These are of two type, water soluble and fat soluble. ये भी दो तरीके के होते हैं। अब देखिए विटामिन कौन कौन से होते हैं, ABCD पढ़ लो, ABCDE, E के बाद FGH नहीं आएगा, ABCDE, K और H, है ना। ये हमारे पास टोटल विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल में हमारे पास B एंड C, दीज आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन। बचे हमारे पास A, D, E, K। अच्छा, एक और, ये H को भी उन्होंने दिया हुआ है H, क्योंकि H का नाम कम आता था अभी तक, ज़्यादातर विटामिन A, B, C, D, E और K का ही यूज़ होता है। लेकिन H तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में हेयर फॉल की समस्या तो सबसे ज़्यादा है, और हेयर फॉल के लिए तो रिक्वायरमेंट होती ही विटामिन H की है। कैरेटिन, हाँ, प्रोटीन में भी आपको कैरेटिन याद रखना है। कैरेटिन इज अ हेयर, नेल्स वगैरह, इनके अंदर कैरेटिन प्रेजेंट होता है। विटामिन बी और सी के ऊपर आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि हम लोग सी को रेगुलर लाइफ में क्यों यूज़ करते हैं।
पुराने समय से चला आ रहा है कि हमें सलाद के साथ में नींबू खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल का मतलब है कि बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा, ये हम यूज़ करेंगे, बॉडी के अंदर यूटिलाइज होगा और उसके बाद यूरिन के थ्रू या बॉडी में बाहर निकल जाता है। तो वो रुक नहीं रहा है, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको रेगुलर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मेन रीज़न आ रहा है बिकॉज इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए, डी, ई, के, दीज आर द फैट सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछे जाएंगे। विटामिन के नेम, विटामिन के सोर्सेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डेफिशिएंसी डिजीज़, कि कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज़ होती है। सबसे पहला आता है जैसे हमारे पास विटामिन ए। विटामिन ए का नाम ऐसे याद रखना, विटामिन ए आया सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग ने क्या करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ना लिखना चालू करेंगे तो पहले दिखाई देगा तब तो पढ़ेंगे। तो विटामिन ए हमारी ABCD की यहाँ से चालू हो गई ए। विटामिन ए आँखों से रिलेटेड, आँखों का मतलब रेटिना, तो नाम हो गया रेटिनॉल, नाम हो गया इसका रेटिनॉल। और विटामिन ए की जो इसीलिए देखिए आपके घरों में भी अभी विंटर्स चल रहे हैं, आपको देखने में दिख रहा होगा, हम स्वेटर पहने हुए हैं इस समय, तो स्वेटर वेयर किए हुए हैं, तो नेचुरल विंटर्स चल रहे हैं। और विंटर में तो हरी पत्तेदार सब्जियां खूब आती है। बच्चे भले ही कहते हैं कि हमें घास फूस खाने को मिलता है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, बिकॉज ये जो घास फूस है ना, उनके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं। बथुआ, मेथी, पालक इस समय खूब आ रहा है। और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अगर आप सोर्स में भूल जाते हैं विटामिन सी को छोड़ के, अगर कोई, या विटामिन डी में अगर आप किसी के सोर्स भूल जाते हैं तो आप ग्रीन वेजिटेबल डाल सकते हैं। मिल्क कंप्लीट सप्लीमेंट है। मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर द कॉमन सोर्सेज फॉर ऑल द विटामिन्स एक्सेप्ट विटामिन डी। विटामिन डी इज ऑब्टेन फ्रॉम सन से मिलता है अदरवाइज, और विटामिन सी हम सिट्रस फ्रूट से लेते हैं। अदरवाइज बाकी सारे विटामिन जो है वो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल कॉजेज द जीरोप्थैल्मिया डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज, इनकी डिजीज का नाम नाइट ब्लाइंडनेस है, यहाँ नोट नहीं करें, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनते रहें। विटामिन बी की फैमिली तो बहुत बड़ी है, विटामिन B1, B2, B3 से लेके B12 तक चलते हैं अभी आप लोग के कोर्स में, लेकिन स्टार्टिंग के दो दिए हैं, विटामिन B1 और B2 थायमिन, और विटामिन B1 के लिए यूज़ किया है। विटामिन बी का जो मेन डिजीज़ है जो आपके से पूछी जाती है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ बेरी, जो कि हमें इसका जो मेन सोर्स है ना वो है हस्क ऑफ राइस। हस्क ऑफ राइस का मतलब होता है चावल की भूसी। चावल की भूसी के अंदर सबसे ज़्यादा थायमिन होता है, और जिसके डेफिशिएंसी से हमें विटामिन बी की कमी होती है। डॉक्टर्स जनरली क्या करते हैं, जब हम लोग बीमार होते हैं डॉक्टर क्या करता है, विटामिन B12 के कैप्सूल दे देता है। विटामिन B12 के कैप्सूल ताकत के कैप्सूल होते हैं, है ना, हमारे सोर्स है, हमारी ग्रोथ, हमारी एनर्जी, हमारी वीकनेस के लिए विटामिन B12 कंप्लीट हो गया, बी का कंप्लीट फैमिली। बेरी कॉज करता है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जिसके लिए स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, और स्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 फॉर्मूला भी है, किसी एक सिंगल का आप याद कर सकते हैं, बाकी के फॉर्मूले तो बहुत बड़े हैं। डिजीज है स्कर्वी। विटामिन डी सनलाइट से ऑब्टेन होता है। विटामिन डी से मेनली जो डिजीज़ होती है वो होती है रिकेट्स। छोटे बच्चों में जो होती है रिकेट्स, जिसमें आपकी बोन्स जो है वो कर्वेचर में आ जाती हैं, या तो इस तरीके की शेप में हो जाएंगी, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव शेप में आ जाती हैं। ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनके अंदर ऑस्टोमेलाइशिया यानी गठिया जिसको कहते हैं वो हो जाती है विटामिन डी की कमी से। इसके बाद विटामिन ई का नाम है फिलोक्यूनो टोकोफेरॉल। विटामिन ई इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, ये इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है विटामिन ई। और वैसे अभी आपको और बताएं, इनफर्टिलिटी के अलावा आज की डेट में जैसे लोग अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं जो हेयर्स ऑयल में मिला के या क्रीम वगैरह में मिला के भी यूज़ करते हैं विटामिन ई को। इसके बाद विटामिन के ये फिलोक्यूनॉन नाम है इसका, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और विटामिन के जो कि आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल और के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
ठीक है। और इसके बाद लास्ट आता है, दिस इज द विटामिन एच, जिसका नाम है बायोटिन, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर फॉल, जो कि आजकल की कॉमन समस्या होती है, विटामिन एच की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे विटामिन सी पे भी हमने आपको बोला कि भाई विटामिन सी इज यूज्ड इन रेगुलर लाइफ, हम क्यों रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं विटामिन सी को। या आपका कई बार क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी जो है वो बॉडी में स्टोर होती है, कहाँ पे स्टोर होती है, व्हाट इज़ द प्लेस, किस फॉर्म में होती है, एडिपोज टिश्यूज़ में होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर रहती है विटामिन डी। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है, जितने भी जो फैट फॉर्मिंग टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहता है विटामिन बी, बिकॉज इट इज़ अ फैट सॉल्युबल टिश्यू। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन के ऊपर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। विटामिन इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड पर अभी हम आपको बता दें, ज़्यादातर हमारे बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन तो वही रहता है, डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस है। तो न्यूक्लिक एसिड, देखिए आपको हर पॉइंट पे आपको नेम से ही पता लगता है, न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स विच आर रिलेटेड विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये सेल के न्यूक्लियस से रिलेटेड है, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए, इसका डिफरेंस पेपर में बहुत आता है। डीएनए इसकी डिस्कवरी की थी वॉटसन एंड क्रिक ने, जबकि ये आरएनए की डिस्कवरी की थी आपकी फ्रेडरिच मिशर ने। ठीक है। डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, दिस इज द डीऑक्सीरिबोज, डीऑक्सीरिबोज का भी डिफरेंस क्वेश्चन मेनली पेपर में आता है। एंड इसका जो शुगर होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ रिबोज शुगर। एंड हियर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डबल हेलिक्स, और इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसकी डिस्कवरी वॉटसन क्रिक ने की, जबकि इसकी डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने की थी। उसके बाद आपके पास आता है पॉइंट कि क्या क्या न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कि नाइट्रोजनस बेस। इसके पास में आपके एग्जामिनेशन में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। नाइट्रोजनस बेस यहाँ शॉर्टकट लिख दे रहा है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ प्यूरिन एंड पिरामिडिन, इधर भी प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर फिर हमारे पास 2 आ गए, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन के अंदर साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। यहाँ पर प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन, बट यहाँ पे हो जाएगा साइटोसिन एंड इन प्लेस ऑफ थाइमिन यूज द यूरासिल। ये अब इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, ए इज कंबाइंड विथ, देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए के ऊपर तो आज की डेट में बहुत वर्किंग हो रहा है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर कोडिंग होती है। एडेनिन और थाइमिन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, एडेनिन कॉम्बिनेशन करती है थाइमिन के साथ में, एंड साइटोसिन एक का प्यूरिन एक का पिरामिडिन कंबाइन करता है, साइटोसिन कंबाइन विथ ग्वानिन इन केस ऑफ द डीएनए, ये होता है डीएनए में। जबकि आरएनए में क्या होता है, एडेनिन कंबाइन विद यूरासिल एंड साइटोसिन कंबाइन विद ग्वानिन। ठीक है। अब कई बार एग्जामिनेशन में आप लोग के सीबीएसई में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरएनए में क्या चीज़ नहीं है जो डीएनए में है, या डीएनए में वो कौन सी चीज़ नहीं है जो आरएनए में है। तो एक ही चीज़ का मेन डिफरेंस हो रहा है, यूरासिल और थाइमिन। थाइमिन होती है डीएनए में, जबकि यूरासिल होता है आपका आरएनए। और उसके बाद आपसे वो सारे नाइट्रोजनस बेस पूछते हैं कि कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं।
डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, ये हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मेन काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो ये हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स, और आपको कैसे लगे? वैसे बहुत फास्ट, क्योंकि वन शॉट है तो निश्चित है, मुझे मालूम है मैंने बहुत फास्ट आपको पढ़ाया, लेकिन वन शॉट में आपको सब कुछ बताना था। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।